Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Students, in this video, I'll continue the poem Death Be Not Proud by John Donne. In this poem, John Donne, actually it is a sonnet, and in this sonnet, John Donne personifies death and directly addresses death and says that death should not proud on itself, because it is neither death is neither mighty nor awful. So death should not proud on itself. Now, in the first 8 lines or in the octave, he gives the text, gives us and tells us that death is neither strong nor scary, and he gives that sleep and rest are the pictures of death. And he says that death is so gives a much more pleasure. So the noble person who are a great person and noble person just go with the death, or they die soon, because it gives pleasure to them, or so death takes them away. Now in this come to the next lines and come to the next part of the sestet of this poem. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men. In this sestet, in these 6 lines, the poet says that death is a slave of some happenings. वो कि जो मृत्यु है वो भी किसी न किसी चीज़ की slave है. It has no its own existence. Death is not its own existence. मृत्यु का अपना कोई existence नहीं है. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, endorsed with poison, war and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke. Why solest thou then one short sleep past? We wake eternally, and death shall be no more. Death, thou shalt die. Thou art slave to fate. Fate means luck, destiny, bhagya, chance, kings and desperate men. Okay, desperate men means despondent people. Thou art slave to fate. These are the causes of death. The poet gives a series of causes of death कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के कारण क्या है. इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये इनके क्या कारण है, मृत्यु का क्या कारण है. स्लेव टू डेथ, किसकी गुलाम है? फेट, भाग्य की. ओके, चांस, किंग्स, ओके, एंड डेस्परेट मैन एंड द पीपल हु आर डिसअपॉइंटेड एंड डिसअपॉइंटेड इन देयर लाइफ, जो निराश लोग हैं, परेशान लोग हैं. एंडोस्ड विद पॉइजन, जहर, ओके, वैनम, वार, युद्ध, एंड सिकनेस ड्वेल एंड एपिडेमिक एंड पैंडेमिक. ओके, and poppy or charms can make us sleep as well. And poppy, opium, afim, and or charms or magic, okay, can make us sleep as well and better than thy stroke. Now the John Donne says that thou art slave to fate. जो मृत्यु है वो भाग्य के गुलाम है, ठीक है. चांस मौके की गुलाम है. किंग्स, राजा महाराजा जो है एक्चुअली, and desperate men और निराशाओं की गुलामी, because actually when people are very despondent and disappointed, when a man is very disappointed, he wants to commit suicide. Okay, तो वो अपने आप को मारना चाहता है, मरना चाहता है, तो this becomes a cause of death actually. So despondency and disappointment becomes the cause of death. So he says that these are the reasons. And with poison, zahar जो है, venom, it is also a cause of death. If anyone takes or swallows वैनम ही डाइज, तो वो मर जाता है. सो वॉर, युद्ध में जो लड़ाई होती है, जो फाइट होती है, उसमें भी वो भी एक रीज़न होता है मृत्यु का, कि युद्ध में भी कुछ लोग काफ़ी लोग मर जाते हैं. एंड सिकनेस ट्वेल एंड द पैंडेमिक और एपिडेमिक, जो पैंडेमिक है और जो एपिडेमिक की महामारियाँ हैं, जस्ट लाइक फ्लड, महामारियाँ हैं और अदर नेचुरल शॉक्स हैं, जैसे फ्लड एंड डिजीज, एपिडेमिक, फ्लड, ड्रॉट. सो ये जो रीजन्स हैं, ये सब क्या है? मृत्यु के कारण. दीज आर द रीजन ऑफ डेथ. ये सब मृत्यु के कारण है, मृत्यु इनकी गुलाम है. इफ़ दे आर
इफ दीज थिंग्स अकर्ड इन लाइफ, यदि ये सब कुछ जीवन में होता है, देन डेथ इज श्योर, तो मृत्यु निश्चित हो जाती है. सो दीज आर द रीजन ऑफ डेथ, दीज आर द कॉजेज ऑफ डेथ, ये मृत्यु के कारण है. डेथ इज द स्लेव ऑफ दीज कॉजेज, इन सब कारणों की गुलाम है, इन सब चीज़ों की जो है मृत्यु गुलाम है. इट डजंट हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये खुद भी इन सब चीज़ों की गुलाम है. एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक us is asleep as well. In poppy, if anyone takes opium, यदि कोई इंसान अफीम खा लेता है, तो then he the intoxication of this opium, जिस opium का जो नशा है, the intoxication of this opium स्लीप्स हिम, तो वो उसको सुला दे, मेक हिम स्लीप, मेक ए पर्सन स्लीप, तो वो उसको सुला देता है, उस ओपियम के जो नशे से वो व्यक्ति सो जाता है. ओके, देन बेटर देन द स्ट्रोक, एंड ही सेज दैट स्ट्रोक इज बेटर, वो तो शायद उस जो मृत्यु की नींद है उससे भी ज़्यादा डिलाइटफुल है, या उससे भी ज़्यादा वो प्लीजेंट है, उसको आराम देता है. वो कहता है कि तुम उसके गुलाम नहीं हो, जितना आनंद मृत्यु की नींद में सोने में होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो प्लेजर है, जो डिलाइट है, वो शायद जो ओपियम है उसके नशे में होता है. द इंटॉक्सिकेशन ऑफ दैट ओपियम, उस जो ओपियम है, उस अफीम का, जो पॉपी जो अफीम है, उसको खाने से जो नशा होता है, वो नशा शायद तुम्हारी नींद से भी ज़्यादा प्लीजेंट होता है. Why swallowest thou then one short sleep? Why swallowest? Swallowest mean why do you feel proud on yourself? Then why do you feel proud on yourself? फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपने ऊपर घमंड क्यों करती हो? ओह डेथ, ओह मृत्यु. Why do you feel proud on yourself? फिर तुम इतना घमंड क्यों करती हो? You don't have your own existence. तुम्हारा अपना कोई existence नहीं है. But you yourself are slave of these causes. इन सब कारणों की या इन सब थिंग्स की तुम गुलाम हो खुद, तुम्हारा अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. यू शुड नॉट फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, तो फिर तुम्हें किस बात का घमंड है, और तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. हाई सोलेस्ट दाउ देन, फिर तुम अपने ऊपर घमंड क्यों करती हो? दाउ मीन्स यू, सोलेस्ट टू बी प्राउड, कि टू फील प्राउड. देन वाई डू यू फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, फिर तुम अपने ऊपर घमंड क्यों करती हो, फिर तुम इतना क्यों इतराती हो? One short sleep past, we wake eternally. Now, John Donne talks in this line, in these last two lines. John Donne talks about the day of judgment. Okay, he talks about the day of judgment. वो कहता है one short sleep past, we wake eternally. एक दिन, one day, एक दिन, we wake eternally. इस short sleep, okay, ये जो पास, ये जो शॉर्ट स्लीप है, ओके, जो डेथ है, मृत्यु है, हालांकि इट इज़ नॉट ए शॉर्ट स्लीप, पर वो कहता है कि जो मृत्यु है, इस मृत्यु की नींद में सोने के बाद वी वेक इटरनली, वन डे, एक दिन, वी वेक इटरनली, हम सब वी विल कम आउट ऑफ देयर आर ग्रेव्स. ओके, द ह्यूमन बॉडी, द डेड बॉडीज विल कम आउट ऑफ देयर ग्रेव्स, जो मृत शरीर है वो अपने जो ग्रेव्स हैं, ठीक है, कब्र हैं, उससे बाहर निकलेंगी. ओके, एंड डेथ शेल बी नो मोर, फिर उस मृत्यु का एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा. डेथ दाउ शेल डाई, बल्कि मृत्यु तुम्हारी खुद की ही मृत्यु हो जाएगी. मीन्स वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली. He says that one day the day of judgment will come, एक दिन जो डे ऑफ जजमेंट होगा, ठीक है, ईश्वर का जो जजमेंट वाला दिन होगा, और उस दिन क्या होगा, क्योंकि डेथ शेल बी नो मोर, उस दिन क्या होगा, वो जो एक्चुअली यहाँ पर एक क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में वो बात करता है, कहता है कि इस दिन वन डे द डे ऑफ जजमेंट विल कम एंड द डेड बॉडीज विल कम आउट ऑफ देयर ग्रेव्स, और जो मृत शरीर है वो अपने अपनी कब्रों से बाहर आएंगे. एंड देन दे विल मीट टू देयर सॉल्स, और एंड द बॉडीज विल मीट टू द सॉल्स, और जो मृत शरीर हैं वो सब आत्माओं से मिलकर एक नया जीवन वापस पुनः उनको एक नया शरीर मिल जाएगा. सो ओके, तो दे जस्ट लाइक दिस, इन दिस वे दे पीपल आर नॉट डेड, तो इस तरह से वो लोग मरे हुए नहीं हैं, ठीक है. दे विल कम आउट ऑफ देयर ग्रेव्स एंड देन दे विल मीट टू दिस देयर सॉल्स, वो अपनी अपनी आत्माओं से मिल जाएंगे. एंड देन देयर विल बी द वर्डिक्ट ऑफ गॉड, एंड वो ईश्वर का न्याय होगा, ठीक है. देन द गॉड विल डिसाइड, ईश्वर निर्णय करेगा
कि whether they should be commit and वो ईश्वर then the God will judge, then human being eternal, they should give happiness or they should be given punishment, कि उन्हें happiness दी जाए या उन्हें punishment दिया जाए. And after that this earth will cease, okay, the earth will cease to existence, और इस दिन वो पृथ्वी भी नहीं रहेगी. okay, then there will be neither birth nor death, ना तो जीवन होगा ना मृत्यु होगी. only there will be only eternity, सिर्फ अमर होगी, सिर्फ आत्मा होगी. okay, so when the dead bodies will come out of their graves and they will meet to the these bodies will meet to the souls or their souls, then there will be another new born. okay, and these bodies will find their souls and death will defeat it, and it will defeat death. इस तरह से ये मृत्यु को डिफीट कर देगा. एंड देयर विल नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ डेथ, इस तरह से मृत्यु का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. ओके, दो आर्ट स्लेव टू फैट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन. जॉन डन सेज दैट कि जो मृत्यु है वो भाग्य की, चांस की, और जो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है लाइफ में उसकी, या फिर कुछ हैपनिंग्स होती है, मिस हैपनिंग्स होती है लाइफ में, उसकी गुलाम है. एंड डॉथ विथ पॉइजन, जहर, उसकी गुलाम है. वॉर, सिकनेस, युद्ध, या फिर कोई एपिडेमिक या महामारी बीमारियाँ होती हैं तो इन सब की गुलाम है. मीन्स दीज आर द रीज़न ऑफ डेथ, ये सब मृत्यु के कारण है. ये सब होता है तो मृत्यु होती है, इसलिए मृत्यु का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है. इन्हीं सब कारणों से मृत्यु का एग्जिस्टेंस है, अपना उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ये सब रीज़न है जो कि मृत्यु को लेकर आते हैं. एंड पॉपी एंड चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दाई स्टॉक. एंड वो यहाँ कहता है कि जो पॉपी और चार्म, पॉपी है, ठीक है, जो ओपियम है, उसका जो चार्म है, उसका जो इंटॉक्सिकेशन है, उसमें वो ज़्यादा अच्छा है. उसकी जो नींद है, उस इंटॉक्सिकेशन की जो नींद है, उसके नशे की जो नींद होती है, दैट इज़ बेटर देन डेथ. तो वो मृत्यु से ज़्यादा सही है. और इट गिव्स मच मोर प्लेजर देन डेथ. तो ये मृत्यु से ज़्यादा इसमें आनंद मिलता है. ओके, वाई सोलेस्ट दाउ देन. सो कहता है कि सब इतना कुछ होता है तो फिर मृत्यु को अपने ऊपर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और इससे ज़्यादा आराम कहीं और चीज़ों में भी मिल सकता है. नाउ in last two lines he talks about the day of judgment and he talks about the Christian religion. okay, अबाउट इटर्निटी. वो अमरता का संदेश देता है या अमरता के बारे में बात करता है, इटर्निटी के बारे में बात करता है. वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, वन डे, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन ईश्वर न्याय करेगा, न्याय का दिन होगा. वी वेक इटर्नली, ऑल द डेड बॉडीज, जो भी मृत शरीर है वो अपनी कब्र से बाहर आएंगे. विल कम आउट ऑफ देयर ग्रेव्स, वो अपनी कब्र से बाहर आएंगे. एंड डेथ शेल बी नो, एंड देन दे विल मीट देयर सोल्स, और अपनी अपनी आत्माओं से मिल जाएंगे और उनका फिर एक नया जन्म होगा. और इस तरह से मृत्यु का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. दे आर नॉट डेड, वो मरे नहीं हैं, बल्कि वो क्या होगा, उनका पुनर्जन्म होगा. ओके, वो वापस से उठेंगे, जिएंगे. एंड देन डेथ दाउ शेल डाई, और मृत्यु, उस दिन तुम मरोगी. पीपल विल नॉट डाई, लोग नहीं मरेंगे बल्कि तुम्हारी ही मौत होगी. दे विल नॉट डाई इफ बट यू विल डाई, तुम मरोगी. उस दिन ईश्वर न्याय करेगा. उस दिन जो है वो मृत्यु की ही मृत्यु होगी, वो ही हारेगी. पीपल विल नॉट डाई, वो लोग नहीं मरेंगे बल्कि तुम्हारी ही मृत्यु होगी. Actually, in these lines, Donne describes death in such a way that it doesn't seem the strongest force on earth. ये जो death है ये strongest force नहीं है. The poet says that death is not independent to kill anybody. Okay, in order to do her and truly in order to do this, death has to seek the help of so many other agencies which cause death of people. They are fate, accidents, order of cruel kings. Okay, poison, war, sickness also caused death. Death is just like a slave to all these powers, fate, chance, kings, desperate men, all these. Okay, all these can kill human beings, and this they have the power to command death. Death is thus a slave. Both the poppy and magic charms can help men to sleep as well as, if no better than the sleep death gives them. The poet asks death as to why then it feels so proud on itself. Death has no reason to be proud. Death can only make people sleep for some time. After sleep in the grave, people shall
wake up on the day of judgment and live forever, then death will have absolutely no power over human beings. There is no death in paradise and hell. Thus, death's jurisdiction shall come to an end on that day. There will be death of death. Okay.